Hello everyone, welcome to podcast session. So talk with topper. So one more topper, and his name is Pranav, and he's a MCA student of Maneuver from Thane Center. So again, in this podcast, we will discuss a lots of questions related to the preparation and about his score and what was the preparation strategy. So first of all, welcome Pranav in this podcast session. Yes, sir. Thank you so much, sir. Okay, so Thank you. first, we want to know about your educational background, and then we'll start the some questions related to exam preparation. Okay, sir. Sure. Actually, I have completed my BSc IT from Shri Mm-hmm. GPM College, Andheri, in Mm-hmm. which I have scored 7.32 CGPI. And Okay. after that, yeah, and after that, I have I pursue I was doing my job currently in Mm-hmm. HDFC Securities, Mm-hmm. and after that, I started my preparation in December, Mm-hmm. and now waiting for the cap down. Okay. Okay. So basically, you belong to Mumbai, Maharashtra, or Yes, sir. I'm from Mumbai, born and brought up in Mumbai. so basically you are a Maharashtra student, right? As per the CT. Maharashtrian student. Yeah, yeah. Okay. Okay. So as you mentioned, ki you were working in the SDFC security. So how you manage the time for the preparation? Actually, yeah, in HDFC Securities, when I was working, Mm-hmm. I used to work and come at home and used to prepare and wake up at like till 11 o'clock and all. Mm-hmm. I used to sometime get up early in the morning and used to study, and that's Mm-hmm. how I manage my this Mm-hmm. both things. Okay, okay. So basically, we want to know when you started your preparation for this MCCT. एक्चुअली मैंने जो पढ़ाई है ये दिसंबर से चालू किया था। Mm-hmm. वो हाँ बहुत लेट था, लेट शुरू हुआ था, लेकिन चालू किया था Mm-hmm. मैंने दिसंबर से। Right. तो हाँ। So basically, you started from December, and this is your score. So as per you, अगर से आप थोड़ा सा अर्ली स्टार्ट करते तो और थोड़ा परसेंटेज और बेटर हो सकता था 99% या 100% आई. What you think यस सर। about it? एक्चुअली देखने गए तो 99 परसेंटाइल आ जाते थे, मतलब पहले Hmm. स्टार्ट करता तो अवेयरनेस इतना नहीं था। Right. जो बाद में, हाँ, जैसे मैनोर मैनोर वालों ने जैसा हमें गाइडेंस दिया और Mm-hmm. बताने लगे कि ऐसे ऐसे है, तो उस Right. हिसाब से हम लोग हाँ, हम लोग थोड़ा सीरियस होने लगे स्टडीज के मतलब अकॉर्डिंग। तो उस हिसाब हम्म. से सो हाँ, बेसिकली नहीं मैनुअल से तो बहुत बहुत कुछ लाइटली अपडेट ले रहे मिला. थे। बहुत बहुत ज्यादा। ओके ओके यूट्यूब सो. सेशंस भी बहुत अच्छे थे उनके। यूट्यूब हम्म. पे भी सर डेली कुछ ना कुछ डालते थे, तो उससे भी अपडेट मिलता था। करेक्ट करेक्ट. तो हाउ इट वाज हेल्पफुल मैनुअल चैनल एज वेल एज व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस इन दिस प्रिपरेशंस पीरियड इन मैनुअल. एक्चुअली देखने गए ना तो मतलब हमें गाइडेंस फ्रॉम द हम्म. ग्राउंड लेवल, हमें सर तक, देव सर तक हमें बहुत अच्छा गाइडेंस मिला। देव सर हम्म. खुद आते थे, हमें बताते थे, स्ट्रैटेजी समझाते थे हमें। यूट्यूब से भी हम्म. उनको उनकी बहुत हेल्प हो जाती थी। राइट. कभी कभी जो हमारे स्टाफ थे, टीचिंग स्टाफ, वो राइट. इंडिविजुअली हमें हेल्प करते थे। कुछ डाउट रहेगा, कुछ डाउट सॉल्विंग वगैरह, वो भी एकदम जेनरस था। कुछ कुछ हम्म. इशू नहीं था, एकदम क्लियर था। पूरा स्ट्रैटेजी वाइज कैसे एग्जाम देते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, वो सब पूरा मैनुअल वालों ने सपोर्ट किया था, हमें समझाया था। So basically, what is the contribution, if I will ask, contribution of the faculty of maneuver in your preparation strategy? So how you can explain it? It was basically good, and about the Mm-hmm. rating, I would give about 10, 9 out of 10 for the Mm-hmm. faculty and everyone. Okay, okay, that's great thing. Okay, now Yes, sir. coming to the main exam part. So, as per the four section, which section is easy for you, which section is difficult for you, and what was your strategy for the preparation, basically? एक्चुअली मेरा स्ट्रैटेजी कैसा था, तो मुझे सबसे डिफिकल्ट सेक्शन तो मैथ्स लगा, Mm-hmm. एंड द इजी वन वाज रीजनिंग एंड इंग्लिश। Mm-hmm. कंप्यूटर वाज आल्सो इजी, Mm-hmm. बट देखने के तो हाँ, मैथ्स में थोड़ा डिफिकल्टी बहुत था, क्योंकि Right. कुछ जो 15 क्वेश्चन थे, 15 क्वेश्चन, वो तो Mm-hmm. मतलब सॉल्व हो गए थे मेरे से। 15 16 क्वेश्चंस तो हो गए थे मेरे से सॉल्व।
बाकी हम्म के थोड़ा बिट डिफिकल्ट था और टाइम बहुत कम था। तो आई माई स्ट्रेटेजी वाज लाइक टू गो विद द इजी पार्ट फर्स्ट। मतलब एक हम्म। बार इजी हो गया ना चीज तो कैसा राइट। वो हेप्टिक, हाँ, सर पे थोड़ा ये नहीं होता, बोझ नहीं होता, तो वो बाकी के सॉल्व हो जाते हैं। तो जो हम्म जिसमें मैं कॉन्फिडेंट था, लाइक रीजनिंग, इंग्लिश और कंप्यूटर, तो हम्म। हाँ, तो मैंने कंप्यूटर को फर्स्ट रखा, उसके देन इंग्लिश हम्म। एंड रीजनिंग, एंड आफ्टर दैट आई जंप टू मैथ्स, क्वांट्स। लास्ट में बेसिकली मैथ को अटेम्प्ट किया था। यस सर। उसमें भी कोई स्ट्रैटेजी फॉलो किया था कि इजी वाले क्वेश्चन जैसे बेसिक अर्थमेटिक के क्वेश्चंस पहले कर लो, बाद में एडवांस मैथ के क्वेश्चन बाद में कर लो? हाँ, अरिथमेटिक क्वेश्चंस पे मैंने पहले स्विच किया था। सो हम्म। अरिथमेटिक कैसे, मतलब मैंने बहुत अच्छे से किया था, लाइक प्रोबेबिलिटी हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन वगैरह, परसेंटेजेस, वो थोड़े अच्छे से किए थे, इसके लिए उसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस था। राइट राइट। एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड काफी बार स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टूडेंट जो मोस्टली ड्यूरिंग द प्रिपरेशंस काफी डिसअपॉइंट हो जाते हैं व्हेन दे अपीयर द मॉक टेस्ट। बहुत क्वेश्चंस आता है स्टूडेंट का कि मॉक में मार्क्स नहीं बढ़ रहे, मार्क्स नहीं बढ़ रहे। आपके साथ भी ऐसा हुआ था? एंड क्या प्रोग्रेस था मॉक मॉक टेस्ट का बेसिकली? तो इन दोनों चीज को कंबाइन करके आप ट्राई करो एक्सप्लेन करने का। ओके सर। सो एक्चुअली देखने गए तो मॉक मॉक टेस्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम्म हमें, हाँ, हमें तो मतलब आइडिया ही नहीं था कि मॉक देना होता है वगैरह। तो हमें देव हम्म सर ने बताया कि मॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मतलब पता चलता है कि आप किधर स्टैंड करते हो। तो एट करेक्ट दैट करेक्ट। टाइम, हाँ, आई टुक इट सीरियसली एंड मैंने मॉक जनवरी में पहला दिया था। तो जनवरी में मैंने जब दिया तो मुझे लिटरली, आप मतलब सोचोगे नहीं कि मुझे 38 मार्क्स वगैरह ही आ रहे थे। हम्म हाँ, बट उसका डिफिकल्टी लेवल भी बहुत था। मतलब उसके वजह से तो बहुत अच्छा ये हुआ कि हाँ, कि लिटरली अभी तो सीरियस होना ही पड़ेगा। करेक्ट। तो हाँ, अकॉर्डिंग टू इट फिर मैंने थोड़ा प्रोग्रेस करना चालू किया। बट हम्म जैसे जैसे मॉक होता था तो उसका रिवीजन भी करता था और हम्म। समझता था कि कौन सा क्या क्या, मतलब कौन से टॉपिक वाइज कितने क्वेश्चंस आते हैं। करेक्ट। तो उस हिसाब से, यस सर। सो मैंने वैसे प्रिपेयर किया और फिर हम्म मॉक में कभी 38 आते थे, कभी 54 आते थे, कभी फिर से 44 आते थे। तो ऐसे हम्म। 8, हाँ, 10 में से मैंने 8-9 मार्क्स मैंने दे दिए थे। हम्म। तो हाँ, तो बहुत मुश्किल से 100 के ऊपर गया ही नहीं था मेरा। तो मैं ओके। तो बहुत डिसअपॉइंट हुआ था, बट मैंने मैंने सिर्फ मॉक को रिवीजन किया, मॉक को हम्म समझा, और जो जो पैटर्न है वही फॉलो किया है, जो जो मैन्योर में बताया, और जो जैसे देव सर ने बताया कि पूरा तुम लोग जो आपको बुक्स मिला है, बुकलेट क्वांट्स का हम्म। वगैरह, वो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो, एक दो बार आपका हो जाएगा। सो मैंने वही सुना और वही मैंने किया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप मेंशन कर रहे हो। आफ्टर अटेम्प्टिंग द मॉक टेस्ट देन एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? यस सर। क्योंकि यस सर। कंटिन्यू आप एनालिसिस नहीं करोगे देन जो भी स्टूडेंट्स इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं एंड दे आर प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर, उनके लिए भी है काफी इंपॉर्टेंट कि बेसिकली उनके लिए ही ये पॉडकास्ट है कि यू कैन सी एक्चुअल एस्पिरेंट जिन्होंने अपीयर किया है और उनका क्या फीडबैक है, उनका क्या सजेशन है। तो आफ्टर अटेम्प्टिंग द मॉक टेस्ट आपको एनालिसिस करना है और डिमोटिवेट नहीं होना है इनिशियली। नो डाउट आप देख सकते हो जैसे प्रणय ने बताया कि 38 मार्क्स आते हैं। सो इनिशियल में कम मार्क्स आएंगे, बट ऐसा कभी कभी होता है कि हमारे पास नॉलेज होती है, हमने सब पढ़ लिया है, बट मॉक में परफॉर्म नहीं कर पाते बिकॉज वी डोंट हैव अ टाइम मैनेजमेंट और एक वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, राइट प्रणव? राइट सर, टाइम मैनेजमेंट इज ऑल्सो अ मेन हम्म। इम्पोर्टेंट थिंग। तो ये सब बेसिक प्रॉब्लम्स होते हैं। तो बेसिकली ये मेंशन कि आपने 9 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया था आउट ऑफ 10। ओके, सो एनी स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी टू अटेम्प्ट द मॉक टेस्ट? जैसे पहले कौन ऐसे सा सेक्शन, उसके बाद फिर उसके बाद, और वो स्ट्रेटेजी कितना हेल्पफुल हुआ एक्चुअल एग्जाम में? एक्चुअल एग्जाम में सर, मैंने जैसे बताया कि मैंने एक ही स्ट्रैटेजी रखा कि जो हम्म इजी वाला सेक्शन है, क्योंकि हम्म। जैसे हम लोग जैसे जैसे इजी मतलब सॉल्व करते जाते हैं ना, तो एक तो राइट। हमारे सर पे जो बोझ होता है वो भी हल्का होता है, और एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है हम लोग का, करेक्ट। कि हाँ। तो मेरा कंप्यूटर, इंग्लिश और रीजनिंग वो जैसे जैसे सॉल्व होते गया तो मतलब एक टेंशन कम होता गया, और मैंने हम्म क्वांट्स की तरफ स्विच किया। सो मैंने वही हम्म। स्ट्रैटेजी जो मॉक में थी वही मैंने एग्जाम मैंने यूज की। राइट राइट। एंड यस सर। ड्यूरिंग द प्रिपरेशंस कभी ऐसा बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया कि यार बहुत पढ़ना पड़ रहा है, इतना डिफिकल्ट है, नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ फीलिंग कभी आया? ऐसे तो, ऐसे तो मतलब बहुत बार आया है, बट वो हम्म कंसिडर नहीं कर सकते सर, मतलब जर आपको
एक एक हायर एम है तो आप ये सब कंसिडर नहीं करके चल सकते। तो क्या मोटिवेट तो करता था ऐसा आपको? मोटिवेट सर मतलब देखने गए कि बहुत सारे चीजें हैं सर, बहुत सारे एस्पेक्ट्स है ऐसे जो हम्म मोटिवेट करते हैं कि अभी तब भी सर ट्वेल्थ फेल भी रिलीज हो गया था तो हम्म। ट्वेल्थ फेल वाज अ बेसिकली। डिफरेंट पार्ट। हाँ, वो तो हम्म। यूपीएससी के ऊपर था बट मेन था वो हार्ड वर्क डेडिकेशन से जो वो हम्म बंदा करता है। तो हम लोग ने मतलब मेरे मेरे मेरा जो फ्रेंड था वो भी, हम्म हाँ वी यूज्ड टू स्टडी विद मतलब टुगेदर। तो हम्म हम लोग ने तभी वो ट्वेल्थ फेल भी देखा और लाइक मोटिवेट हो गए कि चलो करते हैं। हम लोग के पास होके हम्म। भी हम लोग कुछ नहीं कर रहे, तो वो मोटिवेशन था ओके ओके। वैसा। So, basically, next question, it means कि whatever the content which provided by the maneuver या फिर जो भी lectures आपने attend किया, how it was relevant for exam? कितना मतलब जो actual exam में जो questions आए थे और जो आप लोगों ने practice किया था mock test में, book में या फिर classroom में, उनमें कितना similarity था और कितने level तक match किया? सिमिलैरिटी देखने गए तो मुझे बहुत लगे, क्योंकि हम्म जो हम, हाँ मतलब ईच एंड एवरी टॉपिक में ना अराउंड 50 to 100 क्वेश्चन है एंड हम्म। ईच एंड एवरी क्वेश्चन हैज अ डिफरेंट फ्लेवर, राइट। डिफरेंट या। सो उस हिसाब से आप देखोगे ना तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे और सिमिलैरिटी तो बहुत आ गई थी, मतलब देखोगे तो मैच तो बहुत अच्छा खासा हो रहा था। हम्म। हाँ, तो मैं जो जैसे जैसे सॉल्व किया ना तो वैसे वैसे सब क्वेश्चंस भी प्रॉपर जो बुक में थे वही और जो मॉक में थे वही अपने सीईटी के इसमें आ गए एग्जाम में। मतलब कोई अगर से अच्छे से कम प्रैक्टिस कर ले और उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ले तो एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकता है। यस सर, राइट। ओके। एंड व्हाट वाज योर डी डे एक्सपीरियंस? बेसिकली जो सबसे ज्यादा एक्साइटिंग होता है उस दिन लोग स्ट्रेस में भी होते हैं और सारी चीजें मैनेज करनी होती है। ऐसा, यस सर, तो एक्साइटमेंट तो नर्वसनेस ज्यादा थी एक्साइटमेंट से हम्म ज्यादा, मतलब जब एग्जाम थी तो। बट मतलब ऐसा एक था कि अभी जितना किए है वो कि मतलब उसके बेस पे जाएंगे, टेंशन नहीं लेने का, बिंदास करने का। यस लास्ट सर, मोमेंट सॉल्व ये कर। होता है ना कि अभी लगता है कुछ रह गया, थोड़ा सा और पढ़ लेता, आपको ये पार्ट हम्म। कवर कर लेता। तो एग्जाम ये के सर, पहले तक जो एक नर्वसनेस और एक स्ट्रेस होता है कि कुछ तो छूट रहा है, ऐसा ऐसा कुछ फीलिंग हुआ था? ऐसा बहुत होता है सर, ये लूप होता है। ये लूप हम्म। से बाहर आना पड़ता है सर, हम लोग कितना भी किए तो वो कम पड़ता है। एग्जैक्टली, बट दैट्स आई जितना वांट टू किया है। अंडरस्टैंड ना कि जो स्टूडेंट्स इसको यस सर। देख रहे हैं उन समझ पाए कि जो लास्ट मोमेंट तक ये होता है कुछ तो छूट रहा है, कुछ तो छूट रहा है। तो इस चीज को अपने आप पे कॉन्फिडेंस कैसे ले आएगा? नहीं, जो पढ़ा है जितना किया है विच इज इनफ, नाउ जस्ट इसको इम्प्लीमेंट करना एग्जाम में। हाँ यस सर, राइट, मतलब एक्चुअली देखने गए ना हम्म। जो, देखो अभी आप जितना करोगे ना वो कम नहीं, कभी कभी ये सोच के चलो कि आप जो जो कर रहे हो वो ज्यादा भी हो सकता है, हम्म। समझे तो वो। हाँ, तो खुद पे विश्वास रखो सर, मैं तो वही बोलूंगा, जो है हम्म। अपने किया है वही आएगा। खुद पे करेक्ट। विश्वास रखो, हो जाएगा सर। कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस सर, कॉन्फिडेंस, हाँ, इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। एंड व्हाट वाज योर एक्सपेक्टेशन परसेंटेज या फिर मार्क्स कितना एक्सपेक्टेड था? एंड व्हाट वाज योर रिएक्शन आफ्टर डिक्लेरेशन, आफ्टर व्हेन यू सॉ द रिजल्ट? एक्चुअली मेरा जो मतलब मार्क्स था, सो उस 124 था एक्चुअली। हम्म सो हाँ, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मतलब आ जाए, मतलब ज्यादा आ जाएगा। बट हम्म मैं जब, हाँ मैंने एक्चुअल पेपर देखा तो थोड़ा रीजनिंग में बहुत मैंने मिस्टेक्स किया था, सिली ओके। मिस्टेक किया था। सो उसका रीजन हम्म मैं ये बोलूंगा कि मैंने वो फिर से गो थ्रू नहीं किया वो चीजें, नहीं तो बहुत हम्म। सिली सिली मिस्टेक थी, नहीं तो आई होपफुली कि मेरा 99 परसेंटाइल आ जाता। ओके ओके, तो तो आपने बहुत हाँ, इंपॉर्टेंट मैं, चीज यहाँ पे रेस किया, सीली मिस्टेक, जो कि मैं क्लास में हमेशा बताता हूँ कि एक बार लॉजिकल मिस्टेक हो जाए या फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको नहीं आ रहा है, वो एक बार कंसीडर किया जा सकता है, बट मैं हमेशा स्टूडेंट को सजेस्ट करता हूँ कि सीली मिस्टेक की प्रैक्टिस कर लेना कि ऐसे मिस्टेक्स ना हो। ये यस बहुत सर, बहुत डेंजर होते हैं कि आपको क्वेश्चन आ भी रहा है, सब कुछ हो रहा है, बट फिर भी नहीं हो पाता है। एक वो नर्वसनेस होता है ना उसके वजह से भी हो जाता है ये सब। बट हम्म ये ज्यादा करके नहीं फॉलो करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मतलब पेपर पर ध्यान दो, कुछ नहीं हो हम्म। जाएगा, काम रखो खुद को। Right, right. So, any final suggestion for the aspirant, those who are going to appear the next year? या सो
आई वुड से कि मेन तो प्रिपरेशन जितना जल्दी हो सके आप चालू करो। आप वर्किंग हो काफी तो इम्पोर्टेंट। हाँ, अब वर्किंग हो तो मिनिमम 3 घंटा तो आप दे दो। और जितना हो हम्म। सके ना तो अपना बेसिक क्लियर करो। राइट। मतलब परसेंटेज टेबल वगैरह ये सब मैंने चार्ट बना के रखा था, तो ये कैसा ऑफिस में वगैरह जाता था तो वो कैसे प्रिपेयर करता था मैं ये सब के। राइट। हाँ, तो ऐसे स्ट्रैटेजीज बनाओ खुद का। मतलब समझो, कोई कोई लोग होते कि जो डिफिकल्ट को फर्स्ट सॉल्व करते बाद में लास्ट में इजी आते। मैंने करेक्ट। उल्टा किया था, मैंने इजी टू हार्ड पे गया था, मूव किया था। हम्म। तो उस मैं भी हिसाब वही से रिकमेंड करता स्ट्रैटेजीज हूँ सबको, रखो। मैं भी वही रिकमेंड करता हूँ। यस सर। और मेन तो सर, मेन तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि सिली मिस्टेक मत करो और गाइडेंस लो सर। मतलब और डरो मत बिल्कुल। जो अपने हम्म जो मेंटर्स होते हैं उन लोग का गाइडेंस लो, जो अपने सीनियर्स होते हैं उन लोग से बात करो। इतना डिफिकल्ट नहीं हम्म। होता जितना आप सोच रहे हो। और हाँ, एक लास्ट बोलूंगा कि किसी चीज पे रिलाय मत हो कि ये टॉपिक आएगा ये टॉपिक नहीं आएगा। आप हम्म। हो सके तो सब करके जाओ, वो ज्यादा। जितना हो क्योंकि सके सीईटी उतना का, करके जाओ। हाँ, हाँ, क्योंकि सीईटी का भरोसा नहीं है सर। कुछ भी हम्म। मतलब कुछ कभी भी चेंज कर सकते हैं। राइट राइट। सो काफी इंपॉर्टेंट एक चीज आपने कंसर्न रेज किया विच इज कि मेंटर्स का गाइडेंस लेते रहो। तो व्हाट यू बिलीव, सेल्फ स्टडी इज फाइन और टू ज्वाइन द क्लासेस इज बेनिफिशियल? क्योंकि बहुत सारे एक्चुअली स्टूडेंट का देखने ये होता है कि चलो सेल्फ स्टडी से कर लेंगे, तो व्हाट इज द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ टू ज्वाइनिंग द क्लासेस या फिर सेल्फ स्टडी का, अगर से आप कुछ इस पॉइंट को इम्फेसाइज कर पाओ। एक्चुअली देखने गए तो सर कोई कोई लोग सेल्फ स्टडी में भी बहुत अच्छा खासा स्कोर लाते हैं। हम्म। बट अकॉर्डिंग टू मी कभी कभी कैसा होता है, जो क्लासेस होता है उनको हम्म। बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है और अच्छे राइट। खासे स्टाफ होते हैं जो, हाँ, जो डिफरेंट एग्जाम्स देते हैं। हम्म जैसे अभी, हाँ, मैनुअल सपोर्ट में, मतलब मैनुअल क्लासेस में मैंने देखा था। जो हमारे सर्स थे, मतलब जो भी, हम्म तो उन्होंने अच्छा खासा बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक किए थे उन्होंने। हम्म। तो हम्म। उनका जो गाइडेंस था, तो उनके गाइडेंस के अंदर ही हम लोग सब लोग ने सॉल्व किया सब। एक्चुअली देखा सब कैसा होता है वगैरह। उनका हम्म। गाइडेंस के वजह से, और जो उनका टीचिंग था, उन लोग का जो मेथड लगाते हैं वो लोग, एक राइट। मिनट में कैसा ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व होता है, वो दैट इज शॉर्ट इम्पोर्टेंट मुझे ये शॉर्टकट। लगता है। हम्म। शॉर्टकट मेथड, क्योंकि ये सब ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और मेन राइट। तो जो, हाँ, ओरिजिनल फॉर्मेट होता है, जो कॉन्सेप्ट होता है, वो भी आपको अलग से समझाते हैं वो लोग। ऐसे नहीं कि करेक्ट। सिर्फ शॉर्टकट बताते। ये भी मैंने बहुत कुछ सीखा है मैनुअल से। हम्म। ओके प्रणव, तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने रेज किया। फर्स्ट पॉइंट आपने जो रेज किया था सजेशन में कि एज अर्ली एज पॉसिबल इफ समवन स्टार्ट, तो काफी बेनिफिट होगा। दूसरा आपने पॉइंट किया था कि एटलीस्ट 3 आवर्स डिवोट करें, अगर से वर्किंग प्रोफेशनल है या फिर स्टूडेंट है डेली बेसिस पे, तो काफी, क्योंकि मैथ सेक्शन इज वेरी वास्ट। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने मेंशन किया कि मेंटर्स, अंडर द गाइडेंस ऑफ द मेंटर, इफ समवन विल प्रिपेयर, सो डेफिनेटली दे विल प्रिपेयर इन द राइट वे। सो I would also like to suggest कि सेल्फ प्रिपरेशन इज फाइन, बट अगर आप मेंटर के अंडर में प्रिपरेशन करते हो तो काफी टाइम एंड एफर्ट्स आपका बच जाता है। राइट कंटेंट और मटेरियल को आप प्रैक्टिस करते हो, जो भी स्टूडेंट्स हैं। सो होप सो गाइज दिस पॉडकास्ट विल बी हेल्पफुल फॉर यू दोज हु आर वाचिंग एंड प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर। सो ऐसे ही पॉडकास्ट एंड टॉपर के साथ हम डिस्कस करते रहेंगे आप लोगों के लिए। जो लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हो, कंटिन्यू चैनल के साथ कनेक्टेड रहो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लो एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बिकॉज कंटिन्यू आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलते रहते हैं रिलेटेड टू इन्फॉर्म एग्जाम्स एंड जो भी नोटिफिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं। So hope so you people will like this podcast, and thanks Pranav to come here to share your experience with our viewers and students. Anything else you want to mention? नथिंग सर, आई वुड ऑल्सो थैंक यू सर कि आपने मेरा पॉडकास्ट किया इसके लिए। Chalo, great, great. And once या again, सर, wish you all the best for your futures. थैंक यू सो मच सर।